Around 93, I used to keep getting these letters from all the big studios like Warner's saying, we want to meet up with you. And I used to think it's some kind of a joke because why would such a big production Hollywood company want to meet me? I was just a non-entity. And I just shared this information with a lawyer friend of mine who is an American. And he said, look, there's no harm in going and meeting them. So I accepted one of their letters and I went across to Warner Brothers. And for almost 2 hours, this executive didn't allow me to speak at all. He gave me an entire lowdown of the Indian film industry. He knew every detail, how we make films, what are our economics, what are the commerce, what are the kind of stories we make, who the actors are, the whole system. I was shocked. And I came back and, confided in my friend, look, I went there and this is what happened. He just said one word. He said, Mr. Bachchan, you need to go back to your country because the Americans are coming. In this video, we will discuss why it will be very hard or almost impossible for Bollywood to catch up with OTT, or it's called streaming services outside of India. The world is moving at a record pace. If you're not constantly evolving yourself, you will be left behind. This is the biggest fear that every company has, to be left behind. कंपनी के लिए पीछे रह जाना सबसे बड़ा फियर है, क्योंकि पीछे रह जाने का मतलब है कि आप बिजनेस से आउट कर दिए गए हैं। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, एक बार पीछे रह गए फिर मौका नहीं मिलता। आप नोकिया के साथ देखिए क्या हुआ है, कितना बड़ा मार्केट शेयर था उनके पास। एप्पल से पीछे रह गए, फिर वो पीछे नहीं रह गए, खत्म ही हो गए मार्केट से। कंपनीज लाइक एप्पल रिलीज प्रोडक्ट्स एवरी ईयर एंड समटाइम्स वी वंडर व्हाई, बिकॉज दे फियर पीपल विल स्विच टू सैमसंग इफ दे आर नॉट कॉन्स्टेंटली पुटिंग आउट देयर इंप्रूवमेंट्स every year. You have to be one step ahead of your audience and your competitors. Once the audience realize that your product, be it your films, is not smarter than them, they will move away from your films. And once they move away, it is very hard bringing them or convincing them back. आप देख लें बॉलीवुड और हॉलीवुड के साथ क्या आ रहा है। हॉलीवुड ने कितनी लीड ले रही है इंडिया में। हर हॉलीवुड मूवी जो रिलीज हो रही है 100 करोड़ टच कर रही है, और आप देख लें कि बॉलीवुड मूवीज के साथ क्या हो रहा है, 60-70 क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। In this video, we will deeply analyze Netflix's case, how they have been perfect at changing and adapting themselves based on the market. Let's understand in detail. Netflix and Blockbuster both started as physical brick and mortar stores in the US that rented physical DVDs. ब्रिक एंड मोटर स्टोर का मतलब सिर्फ यही है कि उनकी एक्चुअल दुकानें हुए करती थी यूएस में, जिससे हम डीवीडीज रेंट कर सकते थे। दोनों कंपनी की, नेटफ्लिक्स की और ब्लॉकबस्टर की भी। ब्लॉकबस्टर एक कंपनी का नाम था। नेटफ्लिक्स रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट एट द राइट टाइम एंड अर्ली ऑन एंड स्टार्टेड रेंटिंग मूवीज ऑनलाइन, ब्लॉकबस्टर बीइंग एरोगेंट didn't. जब इंटरनेट नया आना शुरू हुआ 2000 और उस टाइम पे और उससे थोड़ा 1-2 साल पहले, तो नेटफ्लिक्स ने पहले ही अंदाजा ला लिया कि कितने लोग भाई इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने इंटरनेट का फायदा उठाया कि आप ऑनलाइन डीवीडी बताएं हमें कौन सी चाहिए रेंट करने के लिए, और हम आप पे मेल कर देंगे डीवीडी आपके घर पे, आपको स्टोर पे आने की जरूरत नहीं। एंड एज इंटरनेट एडवांस्ड, नेटफ्लिक्स रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इवन मोर एंड दे डिसाइडेड टू क्रिएट देयर ओन प्लेटफॉर्म application which can run on people's devices and TVs and will follow a subscription model कि आपको अलग-अलग मूवीज रेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन फी दें और सारी मूवी देख लें। और उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई जो चला करेगी। आपको अपना डीवीडी प्लेयर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पे करें एक सब्सक्रिप्शन फी और कोई भी मूवी देखें ऑनलाइन उनकी एप्लीकेशन पे। और जब ये कुछ कर रही थी नेटफ्लिक्स, तो ब्लॉकबस्टर कंपनी थी जो इनकी कंपेटिटर थी, इनकी बरोबर थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो अड़े हुए थे कि भाई दुनिया ऐसी चलती है, ऐसी चलेगी, लोग डीवीडीज खरीदेंगे और देखेंगे, इसमें क्या बुरा है। At that time, Netflix did not have any content of themselves. They would put movies made by Disney, Warner Brothers, Paramount and companies like these, their movies and shows on their platform. So they would pay fee and royalties to these original owners for their movies. और ये सब करके नेटफ्लिक्स पैसे ज़्यादा नहीं कमा रहा था, वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा कर रहा था और उसका प्रॉफिट कम था, पर मेन चीज़ जो थी उसकी ग्रोथ बहुत हो रही थी, सब्सक्राइबर काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो यूएस में उसकी स्टॉक मार्केट की भी पावर थोड़ी सामने आती है कि
वैसे स्टॉक मार्केट आपको काफ़ी दे देगी एज लॉन्ग एज यू आर ग्रोइंग, कि आपका प्रॉफिट चाहे 4-5 साल बाद आना शुरू हो, अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो वो आपको पैसे कैपिटल की कोई कमी नहीं छोड़े। And they also broke the TV pattern by putting all the shows, all the seasons online at the same time. तो टीवी की तरह नहीं कि हमें भाई एक एक एपिसोड की अब वेट करनी पड़ेगी, उन्होंने सारे के सारे एपिसोड डाल देने, लोगों ने एक एक दो दो तीन तीन रात लगा के सारा का सारा शो फिनिश कर देना। बिंज वाचिंग टर्म वहां से शुरू हुई, लोग एडिक्ट हुए नेटफ्लिक्स से, उन्होंने अपनी तरफ खींचा विद दैट स्ट्रेटजी। एंड nobody was doing that at that time. There was no Disney Plus, there was no Jio Hotstar, there was none of those people were there when Netflix started doing this. So Netflix realized that they cannot depend on outside content कि भाई ये वार्नर ब्रदर डिज्नी के कंटेंट के दम पे कब तक चलेंगे। उन्होंने वापस खींच लिया, तो जैसे ये बड़े बड़े शोज ऑफिस, ब्रेकिंग बैड, ये नेटफ्लिक्स के खुद के उनकी ये नहीं है, ये ABC वगैरह के हैं और उनको किराया देना पड़ता है नेटफ्लिक्स को। So Netflix started coming hard on its original content, which they started calling Netflix Originals. Netflix Original content का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसको Netflix ने प्रोड्यूस किया है, Netflix इसको ओन करता है, ये Netflix से कभी नहीं जाएगा, ना ही इसका किसी को किराया देना पड़ेगा। Netflix is still changing themselves, they are still evolving. अभी तक भी उन्होंने ऐसा नहीं किए थे हमने जीत ली दुनिया भाई अब हम बैठे हैं आराम से। No, they are still constantly trying to change and evolve themselves. They are now venturing into video games, UFC fighting and anime alongside reality TV shows and movies. So you see how they are shape shifting super quick to be ahead of their customers. Their whole fight is to retain subscribers. So coming back to Bollywood, it is no different than any other company. They have not evolved themselves, which is the reason they are being phased out by Netflix super quick, at least in India. Netflix, when they had to enter in a new market, yes, they do buy movies from their local industries. जब Netflix इंडिया में नई आई थी, के पास इनके ओरिजिनल शोज नहीं थे ज्यादा, तो इन्होंने मूवीज खरीदी YRF से, धर्मा से, पर वो हमेशा ऐसा नहीं करेंगे। जब वो मार्केट में एस्टैब्लिश हो जाते हैं, उनकी अपने शोज इतने आ जाते हैं, सब्सक्राइबर काउंट उनका हैवी हो जाता है और इंडिया के तो DNA में है इंग्लिश, सो दे स्टार्ट वाचिंग ऑल द इंग्लिश कंटेंट दैट इज देयर ऑन Netflix itself. Then they stop buying this bull crap movies from Bollywood filmmakers, जो उन्होंने इस सोच के साथ बनाई थी कि भाई Netflix तो बैठा है खरीदने के लिए, जो भी बनाएंगे बस वो खरीद लेगा। No, not anymore. So that, my friend, is the video how Netflix, उसके अंदर पूरा का पूरा अमेरिकन कल्चर है कि भाई चेंज होते जाओ, अब कंपटीशन के अहेड रहो, और बॉलीवुड लेजी होता जा रहा था आज, इसीलिए नेटफ्लिक्स ने अंडरकटिंग और पैर निकाल दिए बॉलीवुड के, और वो नेटफ्लिक्स और अदर स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे डिपेंडेंट हो गया है सर्वाइवल के लिए। We will talk about more such examples in the next video. Thanks for watching.